सबसे पहले मैम का Tell your name and like introduce yourself, your name and what you've done. Okay. So, namaste. Oh, okay. So we have to speak up loud then. Okay. So, namaste, vanakkam. My name is Serena Arora. I'm director of Aurora's Eye Films, and I'm very grateful to be here today amongst you all, sharing about our documentary Morning Star, a birth center for the future. इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए क्या मतलब क्या सोच थी, क्या रीज़न था? So what was the reason behind making a film on, it's on midwifery, right? So maybe you can tell us the thought behind it, and also maybe you can explain what is the job of a midwife. Okay, so first of all, I come from a place called Auroville. It's an experimental township in South India in Pondicherry, following the philosophy and the teachings of Sri Aurobindo. And so the idea is all life is yoga and we're working for the divine. So I try to surrender as much as possible to this process. And what happened is my little sister was having a baby and she asked me to be a birthing partner. I don't have any children and I don't wish to have children. So this was a very unique experience for me, and I was there present during the birth of the child. 2 weeks later, the Morning Star team asked me to make this film. And I believe in divine timing. So this is how the project came about. And basically Morning Star is a midwifery team based in Auroville, trying to create awareness and educate about conscious birthing globally. India, Auroville, bioregion, India, and worldwide. And they practice a lot of different techniques, and the idea is just to inform and educate and inspire others. So that is how this film came about. And the role of a midwife, you were asking, is to be present, a female presence generally, to be present for the birth. And it's generally women-led healthcare, which is what I learned during the making of this documentary, is that I thought that was standard, but actually it's not. And that is the idea of this film, is to really create awareness about this topic, so then other people can make a change. इसको कहाँ शूट किया गया है? ऐसा लगता है जैसे रियल, मतलब जो भी इसमें फ़ीमेल दिखाई गई हैं वो रियल लेके किया है। इसमें इंडिया की भी हैं और आउट ऑफ कंट्री कि कहाँ शूट किया गया है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको शूट करने में, इसके बाद? So where have you shot this? Because it has women who are from India and also women who are not perhaps Indian citizens. So are they all in India living right now? So how did you shoot it and where is it shot? And the second thing is, what were the difficulties you faced shooting this? Okay. So maybe first of all I give a little bit of context about Auroville, because this is an international township with nearly 4,000 people, residents living there, from about 70 countries all over the world. So the idea is people from all over the world come together to try and live for human unity and peace. And this is what the experiment is. So we filmed only in Auroville and Pondicherry and around the bioregion. And who you see are residents of Auroville, so international people who decide to live in Auroville. So it's only filmed in India, it's only filmed here. But yeah, they're real, it's a documentary. So it's real people, real women who are pregnant and chose to give birth in Auroville through Morning Star. Challenges that we've had, well, hospitals are almost impossible to film in. To get permission, particularly during birth, it's a very difficult thing. So this we were very limited in. But we had very open-minded mothers and mothers-to-be who really surrender to the project. They really believe in Morning Star, and they understand that we're making this film from goodwill, just to share awareness about this project. So they were happy to be very, very open to this and let us film
the birth or give footage of their birthing scenes, and of showing young babies and children. A lot of mothers don't want the identity of the children shown, but we had a lot of goodwill doing this project. कुछ चेंज आएगा? मैं एक्चुअली इनका जो पहला वाला क्वेश्चन था उस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ. So I'm going to tell them a little bit in Hindi what Auroville is. Okay. Auroville, आप लोगों ने नाम सुना है Auroville. So Auroville एक ये जैसा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है. एग्जैक्टली एक कम्युनिटी है जो पुदुचेरी में है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है. जिन्होंने स्टार्ट किया था वो एक स्वामी कह सकते हैं, उनका नाम है श्री औरोबिंदो. तभी उनका जो पहला नाम का पार्ट है उसको लेके ऑरोविल, औरोबिंदो. सो ऑरोविल, विल का मतलब है हाउस. सो एक बहुत बड़ा फैमिली है ये. और वहाँ पे आप जो भी जाते हैं वहाँ पे उनका मेन मैसेज ये, मेन काम ये है कि जो भी करे बहुत कॉन्शियसनेस के साथ करे. तो अगर कभी आप ऑरोविल में गए, मैं एक्चुअली गई हूँ वहाँ पे, मैं जस्ट घूमने गई थी, मैं कभी वहाँ पे रही नहीं हूँ. लेकिन अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे खेती अंदर की जाती है. लोग सब्जियाँ उगाते हैं, आपको खाना है ना तो सब्जियाँ अंदर ही उगाई जाती हैं. वहाँ पे स्कूल भी है, बच्चे ऑरोविल के स्कूल में पढ़ते हैं. और आप कहीं किसी भी देश के हो सकते हैं पर ऑरोविल में आके रह सकते हैं. वहाँ पे काम भी करना पड़ता है. जैसे मॉर्निंग स्टार जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग वहाँ पे ये सिखाते हैं कि जब आप बच्चे को पैदा कर रहे हो उस प्रोसेस को करते वक्त ये कॉन्शियस होना चाहिए. मतलब आप मतलब ज़्यादा दवाई की मदद ना लें, जो प्रोसेस है उसमें रह खुद फील करें. कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से. बट जैसे मेडिटेशन का प्रोसेस है ना कि आप अगर बैठे हैं यहाँ पे तो बी प्रेजेंट हियर, महसूस करें, अपने आप से अलाइन करें, भगवान से अलाइन करें. ये उनका मेन काम है. पर इनका खुद का स्कूल है, खुद की यूनिवर्सिटीज़ भी है. ये सिनेमा भी बनाते हैं. एक्चुअली मैंने ऑरोविल के एनिमेशन फिल्म्स दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स में देखे हैं. तो इनका ये एक बहुत बड़ी मतलब आप बाहर जाके किसी को पूछेंगे ऑरोविल का नाम तो उनको भी पता है. और ये चाइल्ड बर्थिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये मिडवाइफ्स का जो इन्वॉल्वमेंट है. मिडवाइफ्स एक ऐसा रोल है कि जब माँ एक बच्चे को पैदा कर रही होती है तो उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो मिडवाइफ्स को पता होता है कि कैसे बच्चे को पैदा किया जाए ताकि माँ को तकलीफ़ कम हो और उनको हौसला और हिम्मत मिलती रहे. क्योंकि कभी कभार जो लेबर का टाइम होता है वो लेबर कभी कभार एक दिन से ज़्यादा का हो सकता है. लेकिन 24 घंटा आप सिर्फ बच्चे को पैदा ही कर रहे हैं और उसमें बहुत दुखता भी है. आपका जो शरीर है वो बहुत दुखता है. तो मिडवाइफ्स का काम ये है कि वो ऐसा पद्धति बताए आपको कि अगर आपको 24 घंटा लेबर में रहना है तो आपको सही तरीके से रखा जाए. दूसरे देशों में जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया में गवर्नमेंट मिडवाइफ्स देती है आपको बच्चे पैदा करने के टाइम पे और बच्चा पैदा करने के बाद भी. करीब कुछ गवर्नमेंट्स आपको मतलब 2 से 1 महीना तक मिडवाइफ्स देती है. क्योंकि आपको बच्चा पैदा करने के बाद भी माँ को बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता है और करना पड़ता है. तो इनका प्रोग्राम ये है कि वो मिडवाइफ्स को सिखाती हैं. इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम कि आप सीखें कि दूसरों को कैसे मदद की जाए ये बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में. तो ये वहाँ पे जाके इन्होंने क्या रिसर्च किया इसको बनाने से पहले? कितने दिन वहाँ पे थी इसके बारे में? वो ये ऑरोविल में ही रहती है. अच्छा, ये वहीं रहती हैं? वहीं की है, उन्हीं की कम्युनिटी की है. ये बस फिल्म मेकर हैं. सो ऑरोविल में हर तरह का काम होता है. आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, फार्मर बन सकते हैं. क्योंकि खाना उनके बहुत बड़े जगह पे है और खाना जो सब्जियां जो है वो अंदर ही उगाई जाती हैं और सस्टेनेबल तरीके से उगाई जाती हैं. कि ये नहीं कि फर्टिलाइज़र डाल दिया
बहुत सारे सब्ज़ी उगाने के लिए वो सही तरीका नहीं है। इसलिए कैसे सस्टेनेबल तरीके से सब्जियां उगाई जा सकती हैं वो ऑरोविल के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मालूम है, तो उस पद्धति से भी उगाई जाती हैं वहाँ पे, तो वे वहीं पे रहती हैं। बट दे वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च डिड यू डू टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्री। So I'm very truth orientated and I don't do any scripting. So it's literally going on the field and interviewing and capturing reality as it is. So we don't do second takes, we don't ask, can you do that again, can you change this? It's anthropological, factual, truth-seeking filmmaking. So the research is observing and trying to capture as much as possible, and in the edit only, the story comes through. ये कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे और पाई जाती है? जैसे आपने बताया इंडिया में पुडुचेरी में है, और कहाँ कहाँ है? I think इंडिया के बाहर नहीं है। They want to know if Auroville is there outside of India as well, or is it only in India? Auroville as a township is only based in India, in Pondicherry, South India. But the idea is for Auroville to spread goodwill, knowledge, information across India and globally. So showing new techniques, new ways of thinking, new education. इस कम्युनिटी का कोई और भी अदर पर्सन हिस्सा बन सकता है अगर बनना चाहे तो? How can somebody become part of Auroville community? So generally it's best to find a place to volunteer. So most people come, I think, for at least 6 to 9 months. They look on the Auroville website, find a place that you would like to give your time to and learn, and you volunteer there. Then after some time, you can start your newcomer process. And this is normally a 1 to 2 year process where again you're giving to the community and you're put in news and notes, the Auroville newspaper. For 2 weeks, all Aurovillians get to see this. They get to write good person, bad person, maybe this can change that. And then after that, you can become Aurovillian or not. ये आपका इसके पीछे इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री को फेस्टिवल्स भेजने के पीछे मोटो क्या है? What's your motto for sending the film to film festivals? Generally, I don't send to film festivals. There is only 3 of us in the team for Aurora's Eye Films: a sound person, a cinematographer, and me. So it's very small team, very limited resources, and we're covering a lot. The idea is to be the link between Auroville and India and the rest of the world. Film festivals are a medium where we can share that, to get more eyes on the topic and create conversation. But it's a whole job in itself, and often you need more money to enter these film festivals. Generally, I only enter the free ones if I have time, and if the topic is niche enough for the films we make, because it's only documentaries we do and it's very niche subjects. So it depends if it fits or not. जैसे ये देश से आए इंग्लैंड से, तो क्या इनको ऐसा लगता है कि ये सारा जो प्रोसेस है जो इंडिया के अंदर होता है ये इंग्लैंड में भी शुरू होना चाहिए? Like Auroville, हाँ, Auroville ऐसा कुछ वहाँ पे भी होना चाहिए? Do you think there should be a community like Auroville in England? All over the world, not just England. I think Auroville is a great example, which I would love to see spreading globally all over the world. It's a way to reconnect with the divine, whatever your faith may be. It's a place of no religion, no money. We all earn the same quality of life. Our basic needs are covered. But the ego is not the drive. Money is not the drive. To serve is the drive. So for me, making documentaries is to serve Auroville and to serve the world. It's not about how much money I make or how many film festivals it's in or what TV shows. No, if I can change one person's life, I'm happy with this. इनको कितना टाइम हो गया ऑरोविल से जुड़े हुए? कितना टाइम हो गया? How many years have you been part of Auroville? Nearly 10 years. Almost 10 years. 10 साल से है वो Auroville. ऐसा क्या ख़ास था जिसने इनको अट्रैक्ट किया जुड़ने के लिए? So how did you find Auroville and what was the reason why you thought that you should be part of Auroville? So I always knew I wanted to be a filmmaker. From a very young age, I was brought up on film sets in England. And I studied everything
in order to be a filmmaker from very young. And I always worked on film sets and shadows and these things. So I knew that was my goal. I achieved my dream very young of working in the industry in the top TV stations of the UK, the BBC, Channel 4, ITV, Endemol, and I could see I was not fulfilled. This was not happiness for me. So then I bought a camera and I traveled the world. And I would visit organic farms, sustainable solutions, low-tech solutions, eco-villages, and intentional communities. And I would travel around making films for free of each place. This was years and years and years ago, before technology and phones were so available. It was a skill that I felt I could give back. I'm learning so much from these places. I just wanted to give, and I would make the film there and then by myself. And once it was complete, I would move on to the next place. And what I saw was that this was very much needed. And during this trip, I went to Oroville. And I volunteered for 4 months there. I fell in love with the place. A place of all religions are accepted. Money is not the main principle. And the Mach Mandir, which is the soul of Oroville, is our meditation chamber. This is my favorite place on the world. So because of all these reasons, and the international, and the sustainability, and the forward thinking, this is why I chose to live in Oroville. But first I had to continue traveling, do my research, and then I picked Oroville as home. अच्छा श्रेया मैम, एक ये सवाल आपके लिए है, ये आपके लिए है सवाल कि एज अ फीमेल फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में खास करके, एक फीमेल के लिए एज अ फिल्म मेकर या एज अ आर्टिस्ट, एज अ राइटर कितनी दिक्कतें हैं, और इस प्रॉब्लम को आपने खुद इंडिविजुअल लेवल पे क्या कभी फेस किया है, और जो और नए राइटर्स, नए डायरेक्टर, जो फीमेल डायरेक्टर्स हैं, ये जो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? दिक्कतें तो हैं। एक दिक्कत ऐसा है कि अगर आप कोई स्टोरी लिखते हैं जो फीमेल सेंट्रिक है, लेकिन फीमेल सेंट्रिक भी एक मेल गेज से हो सकती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक फिल्म थी, आई फॉरगॉट द नेम, जो हमारे पहले थे, 35 pieces, राइट? उसमें एक डायलॉग था, ये बेटी नहीं है, ये हमारा बेटा है। समझ ये नहीं करी कि अरे फिल्म अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा सा मेल गेज राइटिंग है। बेटी और बेटे में फ़र्क क्या है? अगर आप कह रहे हैं बेटी नहीं है बेटा है, इसका मतलब वो बेटी ही है, आप बेटियों को कम ही समझते हैं। तो ये मेल गेज राइटिंग है, ये फीमेल गेज राइटिंग नहीं है। कोई लड़की जो जिनको अच्छे तरीके से लिखना आता है, वो कभी नहीं लिखेंगे कि अरे बेटी नहीं है बेटा है, क्योंकि बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है, मतलब देयर आर डिफरेंसेस जो कैरेक्टर में आता है, लेकिन दोनों लड़कों में जो है और लड़कियों में जो है, वो दोनों चाहिए हमें समाज को मजबूत बना के रखने के लिए। सो अगर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आप उनके पास सही में फीमेल गेज राइटिंग लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि लोगों को ठीक से समझ में ना आए। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों को ऐसे डायलॉग्स चाहिए कि ये बेटी नहीं है बेटा है। ये डायलॉग्स हटा देंगे तो लगेगा अरे मजबूत नहीं है फिल्म। तो ये एक बहुत काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। पर हम जब किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी महिलाएं डायरेक्टर बनना चाहती हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं, राइटर बनना चाहती हैं, दिक्कत हो, लेकिन जो सही, जो उनको लगता है कि ये इस तरह की राइटिंग सही है और दूसरे तरह की राइटिंग गलत नहीं है, लेकिन वो मेल गेज राइटिंग है, तो मुझे जो फीमेल गेज राइटिंग जो है, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू राइटिंग जो है, वो मुझे लिखनी है, तो उनको लिख डालनी चाहिए। और जो उसकी वजह से जो जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो उनको फेस कर लेना चाहिए, बिकॉज़ जितने चैलेंजेस आप फेस करते हैं ओवर टाइम, फिर चैलेंजेस कम हो जाते हैं। तो हमें फेस करना पड़ेगा,
ताकि हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 या 20 साल बाद इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, तब हम एक्चुअली देखेंगे कि एक फीमेल राइटर लिखती क्या है। मैम जैसे कि आपका जो कन्वर्सेशन है वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों को अलग धारा के विपरीत दिशा में जाके देखते हो एज अ राइटर डायरेक्टर। तो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फीमेल एजुकेशन नहीं था, लेकिन एक पहला रेवोल्यूशन सावित्रीबाई फुले ने लाया, सावित्रीबाई फुले ने लाया, जो पूना में सबसे पहली लड़कियों की स्कूल खोली गई। और ये उनके दिमाग में डालने वाला एक मेरी था महात्मा ज्योतिबा फुले, जो उनके हस्बैंड थे। और जब उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा स्कूल खोली फीमेल्स के लिए, और भी बहुत सारे काम किए लड़कियों के लिए, जैसे बाल विवाह भी उन्होंने बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है उनकी जर्नी में। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो डेथ के वक्त उनको कफन तक के पैसे नहीं थे जलाने के लिए, उन्होंने लिखा हुआ लिटरेचर है उसको बेचकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो क्या सावित्रीबाई फुले पे जो पहला एजुकेशन उन्होंने लाया, जिसके वजह से आप पढ़ पाए, जिसकी वजह से और भी फीमेल्स यहाँ पे पढ़ पाई, यहाँ पे आज बहुत सारे डायरेक्टर्स मिनिस्टर्स बनी है, तो क्या इसके ऊपर भी आगे चल के कभी आप कोई डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म या फिल्म लिखोगे या बनाओगे? एग्जैक्टली सावित्रीबाई फुले पे ही बनाऊंगी कि नहीं, ये एग्जैक्टली इस मोमेंट पे मुझे मालूम नहीं है। आइडिया बहुत ही अच्छा है और धन्यवाद देने के लिए, ताकि मैं घर जाके सोच सकूँ इसके बारे में कि क्या पता है मुझे इस मोमेंट पे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री या लेट्स से किसी के लाइफ पे बायोपिक बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और होना भी चाहिए। मैं आपको तो एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, सॉरी बात करते हैं, कि जैसे कि पहले बाल विवाह होता था तो लड़की पैदा होती उसकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन शादी करने के बाद में जैसे बड़े होते होते लड़के की डेथ हो गई बाई चांस किसी कारण से, तो लड़की तो जवान है, तो सेक्सुअलिटी एक हार्मोनल चेंजेस है जो नेचर के साथ हमारे अंदर आती है, तो उसको शादी करने का अलाउड नहीं था। तो बाई चांस उस लड़की का किसी के साथ में फिजिकल अफेयर होता है, तो तभी एबॉर्शन वगैरह इतना पॉपुलर था नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस बच्चे को कच्चे में फेंक दिया जाता था। तो सबसे पहला रेवोल्यूशन सावित्रीबाई फुले ने लाया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आपके बच्चों को कच्चे में मत फेंकिए, हमारे घर के, उनके घर के बाहर, उनका घर 302 उनका बंगले का नंबर था, उसके बाहर एक झूला रख दिया, आप यहाँ पे बच्चे छोड़ के जाओ, उस बच्चे को हम पालेंगे। ये रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ जो भी विधवा विवाह के बाद में जितने भी वो जो थे, जो केशारोपण करते थे, इसको क्या बोलते हैं जो बाल काटते हैं, हजम, नाई, जो लड़कियों को बाल काट दिए जाते थे, तो उन्होंने सबसे पहला इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्राइक किया, कोई भी नावी आज के बाद में जितने भी नाई है किसी भी विधवा के बाल नहीं काटेंगे। तो इतने सारे रेवोल्यूशंस लाए सावित्रीबाई फुले ने। तो एज अ भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमने 10 साल पूरे कर चुके हैं। हमारी बहुत इच्छा है कि आप जैसे फिल्म मेकर अगर इसके ऊपर कुछ लिख पाए, बना पाए, ताकि औरतों के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया वो कहीं ना कहीं इतिहास में से पूरा मिल चुका है। और हम एजुकेशन में देखते हैं तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखनी चाहिए, लेकिन 1 या 1.5 पेज की किताब है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। और जहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत देवी देवताओं के नाम से उपवास पकड़े जाते हैं, फोर्थ फास्ट होते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले को याद नहीं किया जाता। तो ये हमको बहुत दुख होता है एज अ मेल कि मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड आज उसी की वजह से पढ़ पाई है। आज आपके सामने मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये भी उसी की वजह से है। तो हमारी रिक्वेस्ट है ये भारत इंटरनेशनल फेस्टिवल की कि इस चीज़ को आप उजागर करने की कोशिश कीजिए। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे मालूम है उनके नाम के बारे में, और जितना आप डिटेल में बता रहे हैं उतना डिटेल मुझे नहीं पता अभी, बट ये आइडिया देने के लिए बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी, ताकि मैं जाके पढ़ाई कर सकूँ इसके बारे में, ताकि क्योंकि एक बायोपिक बनाने या फिर लेट्स से डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बन सकती क्योंकि वो जिंदा नहीं है, बायोपिक बन सकता है। जो पहली सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोली थी, फर्स्ट स्कूल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन शुरू किया, आज उसी स्कूल के अंदर लगभग 20,000 से भी ज़्यादा वेश्याएं हैं, प्रोस्टिट्यूट है, और वो आज भी बोर्ड है स्कूल का।
और उसी के एग्जैक्ट सामने एक मंदिर है, ठीक है, बहुत ही बड़ा भगवान का। सारी लड़कियों की लाइन हर सोमवार को उस भगवान के मंदिर के बाहर लगती है, लेकिन वो जो पहली लड़कियों की स्कूल खुली और उस तो पकड़ के स्कूल निकल जाए ना। को एक स्टैचू में या स्मारक में कन्वर्ट करने के लिए event कोई भी है। इंडिया से फीमेल पहल नहीं कर रही है। तो चलो। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। Thank you so much. थैंक यू सो मच। मैम से सवाल पूछना, उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया आई, यहाँ पे रुकी, तो उसके बाद में यहाँ की इतना अच्छा लगा कि फिर मैं यहीं की हो गई। अभी ना अवार्ड लेना मेरा मकसद है, ना ही कोई पैसा कमाना, बस मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ एक इंसान बदले। तो सिर्फ एक इंसान बदलने से क्या होगा? Okay. So you said that you like the philosophy of Orwell is that by making a film, it's not that you want to earn money, or it's not that you want to become famous, or it's not that you want to win a ton of awards. It's to serve people, and let's say in that process of serving by making this film, let's say you were able to change the life of one person. What do you think? How do you envision that changing one person impacts your life or the world or society overall? That's a good question. I think by changing one person's life leads an opportunity to more and more and more and more. It doesn't stop by one person. That one person will radiate an energy, will communicate the energy, and it will spread. So if this film can touch one, it shows there's a quality in the film that can spread. And this is what I would like to do. Spread the awareness of the great job Morning Star does. So I'm a documentary filmmaker for Oroville, so showcasing the amazing projects of Oroville, and Morning Star is one of them. And I really feel it's an amazing project that is trying to change the lives of all the women in India and the fathers. For example, I was unaware of this. They've been doing a case study asking fathers, after how many days did you first hold the baby? Sometimes it's 5 days after the baby was born, the father holds the baby for the first time. I was very surprised by this. Also surprised that in some hospitals, fathers are not allowed to be present. So Morning Star are really trying to fight for the right of the fathers, create awareness, hold your baby, connect. Birth is such an important thing. We're all born in so many different circumstances. Not every 2 births are the same. Every birth is different. But if we can feel loved and secure when we're growing up, this will benefit the whole world. We'll be better conscious people. So that's why birth is really important. And that's why I would like to share this film of Morning Star with as many people as possible to try and create more awareness. For example, the golden hour. When the child is born, it should be put on the skin of the parents. This is what makes us feel secure and loved. Very simple thing. But generally what the doctors do is take the child and clean the child and take it away. So it doesn't have this golden hour, and it can have a huge effect on us. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing this Thank you. your project to Bharat International Film Festival. Thank you so much. Thank you.